السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر سائقہ جو ہیں، جو پیڈیٹیشین ہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، لندن میں کام کرتی ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تبصرہ یو کے کے ساتھ. ان کا بہت شکریہ. آج ان سے بات کرتے ہیں جو اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیو بورن بیبیز ہوتے ہیں اور اس کے بعد کچھ سالوں تک ان میں کچھ الرجیز ڈیولپ ہو جاتی ہوتی ہیں جس میں پیرنٹس کو نہیں پتہ چلتا. تو ڈاکٹر سائقہ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے کہ ان کے بچوں میں کوئی الرجیز ہو گئی ہیں ٹیسٹ ہونے سے پہلے، مطلب کیا کیا سمٹمس ہیں جو آپ کو یہ اس چیز پہ آمادہ کرتے ہیں کہ آپ نے آگے جا کے ہاسپٹل جانا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. السلام علیکم. تھینک یو بلال. کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے لیکن ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے الرجی کا. میں اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کروں گی. ایک تو ارلی ایج، جیسے ان بیبیز میں الرجی. الرجی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ کی باڈی کسی چیز کو فوراً یا الرجن کے طور پہ ایکسیپٹ کرے اور اس کو فائٹ کرے، اور پھر اس کے ریئیکشن میں جو سمٹمز آئیں وہ الرجک ریئیکشن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی کیا چیز ضروری ہے کہ الرجک ایکسپوجر، یعنی کہ الرجن کا جو ہے وہ جس چیز سے الرجی ہے وہ ایکسپوز ہو پہلے بچہ. تو اگر نیو بورن ہے، اگر ظاہر ہے اس نے کوئی روٹی یا انڈا یا کوئی چیز نہیں کھائی ہوئی، تو آپ کو پتہ لگانا کہ وہ الرجک ہے اس سے وہ ممکن نہیں ہے. تو ایکسپوجر پہلا ہے. تو جو چھوٹا بچہ ہوگا جو کہ صرف دودھ پہ ہے، تو اگر الرجی ہے تو وہ دودھ سے ہی ہوگی. اٹ از اے کامن فارم آف الرجی. ایک کامن ہے، ہم دیکھتے ہیں بچوں میں، لیکن اتنی بھی زیادہ کامن نہیں ہے جتنی سم ٹائمز اس کو ہم مس لیبل کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ ملک الرجی سے کیا مراد ہے. جب ملک الرجی ہے بیسیکلی یہ ایک پروٹین، ملک پروٹین سے الرجی ہوتی ہے. جب بچہ دودھ پیتا ہے تو ملک پروٹین، جس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں کاؤز ملک پروٹین الرجی بولتے ہیں، یعنی کہ ایک خاص پروٹین جو کہ کاؤ کے ملک میں ہوتی ہے، وہ اس سے بچے کو الرجی ہے. اگلی بات میں یہ بتاؤں گی کہ کیا سمٹمز ہیں یا آپ کب سسپیکٹ کریں. ایک تو یہ کہ یہ اگر پراپر الرجی ہے، اگین اس میں دو ٹرمز ہیں، ایک الرجی ہے، ایک انٹالرنس ہے. الرجی ہے جو سیویئر فارم ہے ایک طرح کی، جس میں آپ کا بلڈ ریئیکٹ کرتا ہے الرجنس کو. اور انٹالرنس ہے جب آپ اردو میں کہہ لیں کہ آپ کو وہ موافق نہیں آ رہا دودھ. تو آپ کے سمٹمز کیا ہیں بیبیز میں؟ ایک تو یہ کہ اگر الرجی ہے بچے کو تو وہ الٹیاں کرے گا، اگر اسپیشلی اگر آپ اس کو کوئی بھی پاؤڈر فارم میں ملک دے رہے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ملکس جو ہیں وہ کاؤز ملک پروٹین کے بیس پہ بنے ہوتے ہیں، تو اس سے الرجی ہوتی ہے اور وہ بچہ وامٹنگ کرے گا. تو جب بھی آپ اس کو کاؤز ملک دیں گے، یعنی جو عام ڈبے کا دودھ ہے پاؤڈر، تو وہ الٹیاں کرے گا. اگر بہت سیویئر الرجی ہے تو چہرے پہ ریش آ جاتے ہیں، سرخ دھبے، جس کو دھپڑ بھی کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی میں، تو وہ آ جائیں گے. اگر بہت سیویئر نہیں بھی ہے تو بچے کو ایکزیما، بہت جسم پہ خارش اور ایکزیما کے پیچز بن جاتے ہیں. تو جلد کھردری ہوتی ہے اور دودھ پی رہا ہے بچہ تو اس کے بہت کھجلی جسم میں کرے گا. ایک اور کامن اس کا سمٹم ہے کہ لوز موشنز. اب اگر آپ کا بیبی بہت چھوٹا ہے تو بچے کو تو ہوتے ہی لوز اسٹولز ہیں، لیکن اگر اس میں بلڈ آنے لگے تو یہ بھی ایک بہت ایک امپورٹنٹ یہ سجیسٹ کرے گا کہ اس کو پروٹین الرجی ہو سکتی ہے. تو اس صورت میں آپ نے کاؤز ملک کو اوائڈ کرنا ہے. اگر بچہ صرف ماں کا دودھ پی رہا ہے تو پھر ہم ماؤں کو کہتے ہیں کہ وہ گائے کا دودھ نہ پئیں اور دودھ اینڈ اینی ڈیئری پروڈکٹ اس کو اوائڈ کریں. اور اگر بچہ ڈبے کے دودھ پہ ہے تو ایک
ख़ास किस्म के अलग दूध मिलते हैं जो कि आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, जो इस सूरत में देते हैं। फिर आगे की एलर्जी जो फूड एलर्जीज़ हैं वो आती हैं, और फूड एलर्जीज़ में ये है कि किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। अब मुख्तलिफ़ टाइम पे मुख्तलिफ़ रिसर्चर्स डिफरेंट सजेशंस देते हैं। एक वक्त था कि हम ये पेरेंट्स को सजेस्ट करते थे कि 6 महीने से पहले आपने वीनिंग नहीं करनी, यानी सॉलिड फूड नहीं देना। फिर हमने ये देखा कि एलर्जी का इंसिडेंस बच्चों में बहुत बढ़ गया। उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि अगर हम बच्चे को जल्दी एक्सपोज करें तो एलर्जीज़ कम भी हो जाती हैं, लेकिन टोटली अवॉइड नहीं करती। तो इसलिए ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ कि कब आपने सॉलिड ग़िज़ा देनी है और कब आपने इसको किस चीज़ को अवॉइड करना है। मैं शुरू करूँगी पहले एलर्जी के सिम्टम्स से अगेन, कि अगर बच्चा कोई चीज़ खा के फौरी तौर पे उल्टियाँ करे, चेहरे पे उसके तप्पड़ आ जाए खाने से, सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाए या खांसने लगे, और या फिर अगर एक्जिमा है बच्चे को तो एक्जिमा बहुत बढ़ जाए। ये सारे सिम्टम्स हैं कि वो बताते हैं कि इस फूड से इसको एलर्जी हो सकती है। आपने करना ये है कि उस फूड को अवॉइड करना है। और टेस्ट के लिए स्किन प्रिक टेस्ट होते हैं जो कि एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कर सकते हैं। तो फिर आपको अपने डॉक्टर्स को ये कहना होगा कि मुझे शक है कि मेरे बच्चे को इस फूड से एलर्जी है, और इसका टेस्ट करवाएं। कभी हमें पता नहीं चलता कि किस चीज़ से एलर्जी है। बेहतर यही है होता है कि आप जब बच्चे को सॉलिड फूड खिलाना शुरू करें तो एक फूड आइटम और फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा शुरू करें वक्फे से, ताकि आपको पता हो कि अगर मैंने केला खिलाना शुरू किया है, केला ठीक है। मैंने जब इसको किन्नू खिलाने शुरू किए, ऑरेंजेस शुरू किए, तो उसके एलर्जी आ गई, तो आपको पता चलेगा ये फूड एलर्जी है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि जब आप एलर्जी के डॉक्टर के पास जाते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं जिससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है, और डॉक्टर के लिए ये मुअम्मा हल करना कि आपके बच्चे को किस चीज़ से टेस्ट करे वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपना ये होमवर्क पहले करके जाएं कि देखें कि कौन से फूड से ज़्यादा इसके सिम्टम्स हैं, तो फिर वो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि मैं ये खाने से ज़्यादा इसको नुकसान हुआ। शुक्रिया डॉक्टर साहबा। तो इस पर मेरा सवाल ये बनता है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं एलर्जी टेस्ट के लिए, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि किस एलर्जी है, जिसने आपने कहा, तो वहाँ पर किस तरह टेस्ट किया जाता है? क्या वो स्पेसिफिक उसी चीज़ का टेस्ट करते हैं या वो सब चीज़ों का टेस्ट करते हैं? और ज़रा सा नाज़रीन को समझाने के लिए टेस्ट होता किस तरह है, वो आम ज़बान में समझाने के लिए। अच्छा, तो जब आप एलर्जी टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपका डॉक्टर आपसे डिटेल हिस्ट्री पूछेगा, और उसमें पूछेगा कि कौन कौन से खाने के आइटम्स हैं। कभी कभी तो आप हैरान होंगे कि आपको कहेंगे कि अच्छा मकई के दाने हैं या कोई ख़ास किस्म का नट है तो वो लेकर आओ साथ, कि वो यानी कोई अनयूजुअल अगर है जो उनके पास ना हो, तो कभी तो आपको ये भी कह सकते हैं। तो जो टेस्ट के लिए वो आपसे हिस्ट्री लेके, तो कॉमन एलर्जेंस के टेस्ट वो ख़ुद करते हैं। जब मैं कॉमन एलर्जेंस कह रही हूँ तो कॉमन जो है वो नट्स हैं, अंडे हैं, अंडा है, फ़िश है, मिल्क है, बिल्कुल है, और फिर डस्ट माइट और इस तरह की अगर और चीज़ें हैं जिससे आपको ख़दशा हो तो वो भी उससे भी टेस्ट करेंगे। टेस्ट का तरीक़ा ये है कि अगर तो आपका बच्चा इसी एलर्जी की वजह से एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जी कोई दवाई ले रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि पहले 48 घंटे इसको छोड़ दें या उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप वो ना दें। उसके बाद जो ये टेस्ट होता है
दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट, एक ब्लड टेस्ट। रिलायबिलिटी के हिसाब से और फौरी तौर पे रिज़ल्ट जिसका आता है वो स्किन प्रिक टेस्ट है, और वो बच्चे के बाजू पे एक समझें कि एक चीज़, एक मेडिसिन ऐसी लगाते हैं जिससे डेफिनेट रिएक्शन होता है, तो वो बच्चे का एक स्टैंडर्ड मार्क कर लेते हैं कि अगर हमने ये लगाया बच्चे को एलर्जी हो तो किस तरह का निशान बनेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यानी जिन जिन चीज़ों से उन्होंने टेस्ट करना होता है वो मुख्तलिफ़ हिस्से पे बाजू के या स्किन पे वो छोटा से नीडल से इंजेक्ट करते हैं, और फिर उसके बाद उस पर निशान लगा देते हैं कि ये हमने मिल्क का लगाया है, ये हमने नट्स के लिए लगाया है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपको वहाँ क्लिनिक में रखेंगे 1-2 घंटे, और उसके बाद उसको रीड करेंगे कि आपके बच्चे को किस किस चीज़ से रिएक्शन हुआ, और वो आपको सामने नज़र आ जाता है कि अंडे से ज़्यादा एलर्जी है, कि एग के नट्स से है, कि किसी और चीज़ से है। तो आपको फिर वो लिख के देंगे लिस्ट कि इस चीज़ इन चीज़ों से बच्चे को एलर्जी है। दूसरा टेस्ट एक करते हैं जो यूजुअली जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें कॉमन है, जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं कहीं पे पसंद करते हैं कहीं पे नहीं करते, वो एक ब्लड टेस्ट है। और ब्लड टेस्ट भी फिर वो उसको रास्ट टेस्ट कहते हैं, RAST, जो टेस्ट फिर अगेंस्ट स्पेसिफिक एलर्जन। सो अगर आप कह रहे हैं कि जी मुझे मेरे बच्चे को मे बी एग से है या एग वाइट से है या किसी चीज़ से, तो वो उसके लिए स्पेशल अलग टेस्ट भेजते हैं। इसका रिज़ल्ट आता है 2-3 हफ्तों के बाद, और उसमें भी नंबर्स होते हैं जो से पता चलता है कि हाँ ये बच्चे को एलर्जी है। इसको मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, क्योंकि समटाइम्स आपके पास नंबर्स में आ जाता है कि जी एलर्जी है, लेकिन बच्चा तो वो खा रहा है और वो ठीक है उसे, तो ये थोड़ी सी कभी कभी उसमें गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये भी एक यानी तरीक़ा है मालूम करने का कि ये एलर्जी है कि नहीं। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैंने शुरू में बात की थी एलर्जी एंड इंटॉलरेंस की, तो ये जितनी मैंने टेस्ट आपको बताए ये एलर्जी के लिए काम आते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे को इंटॉलरेंस है जिसमें मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था कि आपको ये चीज़ मुवाफ़िक नहीं आ रही, आपके सिम्टम्स भी कम होंगे, और उसमें एक ये मसला है कि वो किसी टेस्ट में नहीं आएगा क्योंकि ये एलर्जी नहीं है। तो अगर आपके बच्चे को आपको महसूस होता है कि जैसे काउज़ मिल्क प्रोटीन से बच्चा उल्टियाँ कर रहा है लेकिन रैश नहीं है और कोई सिम्टम नहीं है, तो मुमकिन है कि इंटॉलरेंस हो, और या किसी और खाने की चीज़ से कोई और फूड इंटॉलरेंस हो। तो उस सूरत में डायग्नोसिस के लिए भी ये है कि आप वो फूड अगर आप कुछ हफ्ते अगर रोक के रखें तो देखें कि बच्चे के सिम्टम्स बेहतर हो गए, और दोबारा इंट्रोड्यूस कराएं तो वापस से वो सिम्टम्स आ जाएंगे, और आपको डायग्नोज हो जाएगा कि हाँ ये मेरा बच्चा जो है इंटॉलरेंट है से किसी मीट से, फिश से या किसी और चीज़ से। मेन फ़र्क ये होगा कि वो जो थप्पड़ पड़ते हैं चेहरे पे वो सब नहीं होते इसमें, और इसका कोई यानी इलाज के लिए या वो यही है कि आप वो फूड ना दें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपने काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दे दी है एलर्जी के हवाले से। डॉक्टर साहब का आपका बहुत शुक्रिया तबसरा को टाइम देने का।